We have a saying in dentistry wherein we say mouth is the mirror to the body. Some dental problems can actually lead to fatal problems, heart problems, infections that can actually land up you in a hospital. अगर बच्चा यही नहीं देखेगा कि उसके पेरेंट घर में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो कभी नहीं करेगा. As an adult, what is the way? How can we increase the longevity of the teeth? Because there will be some people who will be starting this journey today. Let's say after hearing this. Good afternoon, friends. Welcome to another episode of Medicine Unmasked. 800 करोड़ लोग इस विश्व में, but the fact is 350 करोड़ लोगों को डेंटल प्रॉब्लम है. दिस इज अ ह्यूज नंबर. हम हमेशा देखते हैं टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स में, ओरल हेल्थ इज नॉट ओनली कॉस्मेटिक, ओरल हेल्थ नाउ इज वेरी वेरी क्रिटिकल. आई विल गिव यू सम फैक्ट्स. Poor oral health increases the chance of heart disease by 30% or up to 3 times. Poor diabetes control by about 20%. If you have poor oral hygiene, the risk of dementia increases 2 to 3-fold. That is not the only problem. Some dental problems can actually lead to fatal problems, heart problems, infections that can actually land up you in a hospital. मैंने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा था. This problem is compounded by the fact that we have only one dentist for 250,000 people for our population. But as I said, always we have help that is available. We have experts. I have one such expert with me today who I like to welcome, who's been practicing dentistry and advanced dentistry for about 20 years. Welcome, Dr. Basant. Welcome. Thank you, sir. So, बसंत सर, ये जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो ये डेटा मेरे को भी बड़ा शॉकिंग लगा कि 800 करोड़ लोग, उसमें से 350 करोड़ लोग. And the correlation between dental problems and heart problems and diabetes and other problems. So what has changed in the world order that we are here today? So this is very important point that you highlighted, that oral health cannot be taken away from the body overall health. We have a saying in dentistry wherein we say mouth is the mirror to the body. So whatever is happening in your body will be reflected in the mouth. So we have to ensure that we have a healthy mouth to have a healthy body. Now, as you highlighted very importantly, that cardiovascular diseases, diabetes, as well as dementia problems can be associated with oral health. Now we have got some conclusive studies in the last 5 to 10 years which have highlighted this even more, and now we even know the pathway where it is, how it is directly affecting the body's health. Now, if we start with the cardiac health first of all, as we know कि cardiac health में the main issue is people say कि दांत तो मुंह में है but heart तो अलग है, तो उन दोनों में क्या correlation हो सकता है? We have found out the common link is the bloodstream. Okay. So the bacteria which are there in the teeth, they can get dislodged via the bloodstream and travel to the heart. Okay. That is how they can directly affect the cardiac walls and infect them. Okay. Another indirect correlation that has been found is that bacteria in the tooth, because they enter into the bloodstream, they lead to inflammatory mediators being secreted, especially CRP, which is an important parameter for the cardiac health. So increase in the bacteria in the mouth can lead to increased levels of CRP, which can in turn affect the cardiac health. So the inflammatory mediators as well as the direct infection via the bloodstream are 2 important factors which are leading to more amount of cardiac diseases or exacerbation of the existing cardiac diseases in case the person has a dental infection. Often I have seen, or sometimes people who are diabetic
have more issues or caries, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो शुगर ज़्यादा खाते होंगे, बट दिस इज जनरली इन पीपल हु हैव परमानेंट टीथ. मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, तो डायबिटीज भी परमानेंट टीथ में होगी. तो इन 350 करोड़ में से तो 200 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके परमानेंट टीथ में कुछ प्रॉब्लम है. तो क्या डायबिटिक लोग आर मोर प्रीडिस्पोज टू डेंटल प्रॉब्लम्स? डायबिटीज एंड ओरल हेल्थ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है दोनों में. They have a vicious cycle in which a diabetic person comes into. Okay. Diabetes leads to more dental problems. Dental problems leads to increase in diabetes or poor control of diabetes. Now, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज से होता क्या है. जी. If we talk about the facts right now, 78% of the adult population in the world has got some sort of gum diseases. Now, people who are diabetic, उसमें ये गम डिजीजेस जल्दी प्रोग्रेस करती हैं, फास्टर प्रोग्रेस करती हैं और प्रॉब्लम होती है लोगों के गम्स में. बिकॉज ऑफ दीज गम प्रॉब्लम्स पीपल आर नॉट एबल टू ईट द राइट फूड. मीन्स फाइबरस फूड नहीं खा पाते हैं. दे टेंड टू मूव टू मोर अबाउट अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और स्टार्ची फूड, बिकॉज वो खाना उनसे चपता नहीं है. दे आर नॉट एबल टू च्यू इट प्रॉपर्ली. और बिकॉज दे मूव टू अ डाइट विच इज नॉट अ डायबिटीज फ्रेंडली डाइट, वो इंटर्न डायबिटीज को और बढ़ा देती है. सो इस साइकिल को तोड़ने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी क्रोनिक कंडीशंस, स्पेशली डायबिटीज, दे शुड हैव अ डेंटल चेकअप ऑन अ रेगुलर बेसिस in the same lines as they have a diabetic checkup being done up. In that way, we can prevent the diseases from going to a more advanced stage, and whatever correction that can be done up at a early stage only. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायबिटिक पेशेंट में. एक मिथ है कि अगर आदमी को शुगर है तो डेंटल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए. बट ऐसा नहीं है. हमें इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके डायबिटीज है तो भी अगर आप उसको कंट्रोल में कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड, अ नॉन डायबिटिक पर्सन एंड अ कंट्रोल्ड डायबिटिक पर्सन कैन हैव एब्सोल्युटली सेम सक्सेस रेट if proper protocols are followed. Okay. So thank you for kind of elaborating on that thing. I think it was very, very important. So just moving away from an adult population who've got chronic disease to people, to younger generation, to children. So data says that children probably who have temporary teeth, in 350 करोड़ में से करीबन 50 से 52 करोड़ लोग बच्चे ऐसे हैं. एंड अबाउट इफ यू आर अ चाइल्ड और इफ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विच हैज गॉट टेम्पररी टीथ एंड दे हैव डेंटल इश्यूज, व्हाट इज द एडवाइस दैट यू विल गिव? हाउ कैन दे प्रिवेंट? लाइक डायबिटीज के लिए आपने बोला कि डेंटल चेकअप करना चाहिए. सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, परमानेंट टीथ हैं या टेम्पररी टीथ हैं, टूट जाएंगे, नए आ जाएंगे. सो what is your advice as a person of science for parents and children? See, child health and overall child dental health has been a point of neglect for the past many years. जी. इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं. सबसे पहला फैक्टर तो जैसा आपने हाईलाइट करा वो ये रहा कि दूध के दांत हैं, ये तो जाने ही हैं और नए आ जाएंगे. जी. बट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इन दिस वे कि जैसे कोई भी अपन लोग चाहते हैं कि बच्चे में बुरी आदतें डेवलप नहीं हो, क्योंकि अगर बचपन में ही वो बुरी आदतें डेवलप हो गई तो वो लॉन्ग टर्म में उसको आगे प्रॉब्लम देंगी. सिमिलरली अब बच्चे में अगर प्राइमरी टूथ में ही या दूध के दांतों में ही प्रॉब्लम आएगी तो उसकी हमेशा डेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज रहेगी. सो द बेसिस ऑफ डेंटल हेल्थ आपको बच्चे में ही इनकॉर्पोरेट करनी है. उसके लिए सबसे जरूरी है पेरेंट्स को उसकी इंपॉर्टेंस समझना. बच्चे तो वही इनकॉर्पोरेट करेंगे जो आप लोग घर में उनको दिखाएंगे. मेरा पहला क्वेश्चन जब मैं बच्चों के लिए, कोई मेरे से पेरेंट आता है और मेरे को बोलता है कि सर ये बहुत चॉकलेट खाता है, ये ब्रश नहीं करता रात में, मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ सवाल, क्या आप ब्रश करते हैं 2 बार? अगर बच्चा यही नहीं देखेगा कि उसके पेरेंट घर में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो कभी नहीं करेगा. सिमिलरली बच्चा खुद जाके चॉकलेट नहीं लाता. बच्चे ने खुद पहली बार चॉकलेट नहीं खाई, उसने पहली बार कोल्ड ड्रिंक नहीं ली. जो आपने उसको दिया वही बच्चे ने इनकॉर्पोरेट करा.
तो आपने बच्चे का टेस्ट ऐसा डेवलप करा जिसकी वजह से उसमें ये आदतें हुई. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एज पेरेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेंटल हेल्थ फॉर द चाइल्ड. अब इससे परेशानी क्या क्या हो सकती है बच्चे को? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बताई, अभी अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बच्चों के, तो अगर आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही प्रॉब्लम होगी या फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम होगी तो आगे परमानेंट टीथ में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है. सो फर्स्ट इज द प्रिवेंशन विल स्टार्ट बाय मेंटेनिंग अ गुड oral health even for primary teeth. Secondly, unfortunately, if we talk about the Indian scenario, चाइल्ड केयर के प्लान में चाइल्ड के आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, लेकिन आप चाइल्ड के डेंटल चेकअप के लिए नहीं जाते हैं. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट. पेरेंट जो कि खुद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए कभी नहीं आए हैं, तो वो बच्चों को भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए कभी नहीं लाते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर. अगर आप लोग डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करें, इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, इट इज मैंडेटरी for the child to have a dental checkup. If it is not, it is considered to be child neglect. जी. So ऐसा ही कुछ अपने को एजुकेशन लेवल इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बच्चा डेंटिस्ट के पास में आए. थर्डली, अपने को अपनी जो हैबिट्स हैं, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स, we will have to change that. In between snacking, tendency of having more sugary foods, carbonated drinks, they have to be avoided. And finally, a proper protocol has to be made for the child to maintain a healthcare plan, and that should be tried to be implemented as much as possible. So that was perfect. I think thank you for also simplifying. I can also correlate to some of the things as a parent. So एक बहुत अमेजिंग स्टोरी है अबाउट वियतनाम वॉर एंड टूथब्रश एंड टूथपेस्ट वर नाउ ऑल अवेलेबल एंड पीपल हु केम बैक फ्रॉम वियतनाम वॉर had a lot of dental issues. Dental issue was the second biggest common after Vietnam War in US Marines. So brushing changed that. So क्या ऐसी brushing के अलावा with fluoride toothpaste, brushing, how impactful is that in practice for any population, for adult, parent, children? And what are the simple strategies that are available कि हम ये permanent teeth, temporary teeth का जो भी डिके है रोक पाएँ? क्या कुछ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं? क्या कोई ऐप हैं जिनको पेशेंट कर सकते हैं? तो आई थिंक हाउ इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हाउ कैन वी गेट बेटर विद टाइम? डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत निग्लेक्ट होता है आज की दुनिया में. वी आर वेरी केयरफुल अबाउट विच ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स आर वी यूजिंग, व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रांड्स आर वी यूजिंग फॉर क्लोथिंग, व्हाट फोन्स आर वी यूजिंग, बट अनफॉर्चुनेटली द सेम एम्फेसिस इज नॉट प्लेस्ड ऑन ओरल हेल्थ केयर. जी, आज भी अगर मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कौन सा पेस्ट काम में लेते हैं आप, तो उनको ये भी नहीं आइडिया होता कि वो कौन सा पेस्ट रोज काम में ले रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए मैं सबसे पहले जो आपने मुझे बताया एडिशनल एड के लिए, उससे पहले मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा. इवन हमारी जो बेसिक एड है विच इज ब्रशिंग, वी हैव टू चेंज द वे वी ब्रश. मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये कहता हूँ कि आपको अगर दिल्ली जाना हो और आप अजमेर की तरफ जाओगे तो आप कितनी बार भी जाते रहो दिल्ली नहीं पहुंचोगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द राइट वे फॉरवर्ड. तो क्या वो तरीका है सही ब्रशिंग का, वो हमें इंकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है. हमारे पास में राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे ब्रश करना है. दूसरा, राइट टूल्स होने चाहिए, राइट ब्रश होना चाहिए, राइट पेस्ट होना चाहिए, और इंटेंट होनी चाहिए कि हमें 2 बार ब्रश करना ही करना है. तो सही तरह से सही ब्रश और पेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश करना, ये बेसिक मूल मंत्र है डेंटिस्ट्री का. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एडिशनल एड्स दैट वी हैव. Now the additional aids are slightly different when we talk about a child and about an adult. जैसे अपने बच्चों के लिए जो भी आप लोग प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं वो बड़ों से अलग होते हैं, उनकी स्किन अलग होती है. सिमिलरली उनके दांत भी अलग होते हैं. You cannot have a same paste for a child as you can have for an adult. You cannot have the same brush for a child as you can have for an adult. बच्चों के लिए हमें सॉफ्टर ब्रशेस, छोटे ब्रशेस, पतले ब्रशेस काम में लेने पड़ते हैं. बच्चों के पेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट का खास ध्यान रखा जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन उस एरिया में फ्लोराइड कितना है. तो ये 2 चीजें अपने को बच्चों और बड़ों में डिफरेंस है. अब एडिशनल एड में एक जो इंपॉर्टेंट माउथ एड आता है वो होता है माउथ वॉशेस. ना एक बहुत ही इसमें ग्रे एरिया है जो अपने को समझना चाहिए. एक माउथ फ्रेशनर और एक माउथ वॉश में डिफरेंस है, मेडिकेमेटेड माउथ वॉश. व्हेन वी टॉक अबाउट अ माउथ फ्रेशनर,
all these over the counter products like Listerine, Colgate plaques, they are fine. They basically have a liquid action. आप पानी से भी कुल्ला करेंगे तो वही एक्शन होगा जो कि आप इन माउथ वॉशेस से कुल्ला कर रहे हैं उससे आएगा. उसमें कोई अलग से मेडिकामेटेड इफेक्ट नहीं है, कोई अलग से केमिकल नहीं है, कोई अलग से दवाई नहीं है, क्योंकि एडिशनली आपको हेल्प कर रही है. तो उसके लिए वी हैव टू गो फॉर मेडिकामेटेड माउथ वॉशेस व्हिच हैव टू बी रिकमेंडेड बाय योर डेंटिस्ट डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन. कॉमनली यूज क्लोरहेक्सिडीन बेस्ड आती हैं, बीटाडीन बेस्ड आती हैं, फ्लोराइड बेस्ड माउथ वॉशेस आती हैं. ये हमें माउथ वॉशेस का ध्यान रखना है, वो कंडीशन टू कंडीशन आपका डेंटिस्ट सजेस्ट करेगा. एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें स्पेशली आज इंडियंस लैक, व्हिच इज फ्लॉसिंग. ओके, वी डोंट फ्लॉस. फ्लॉसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दांतों के बीच में जो खाना अटक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लॉसिंग से ही निकल सकता है. फ्लॉसिंग हैज टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड नॉट जब आपके खाना अटके. एंड दिस हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड स्पेशली इन द चिल्ड्रन फ्रॉम द राइट एज, so that it becomes a part of their daily routine. तो ये तो हो गई हमारी बेसिक एड, जिसमें ब्रशिंग, पेस्ट, माउथ वॉश और फ्लॉसिंग हो गई. नाउ जैसा आपने हाईलाइट करा, technology is changing the world. It is even changing how we care for our teeth. We have got smart brushes now. ब्रश करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा तो ब्रश में इनकॉर्पोरेटेड है वो तरीका. ब्रश करने का टाइम भी ब्रश ध्यान में ले रहा है. आपको समझ में नहीं आ रहा कि ब्रश कहाँ पे करना है, तो उसके लिए हमारे जो डिटेक्शन एड्स होती हैं वो पहले आप मुंह पे लगाइए, अपने दांतों पे लगाइए, आप ब्रश कीजिए, वो बता देगा कि किस किस एरिया को आपने छोड़ दिया है या आपने ध्यान नहीं दिया है. वी कॉल इट प्लैक डिटेक्शन एड्स आती हैं. नाउ वी इवन हैव गॉट ऐप बेस्ड टूथब्रशेस. आपने कितने दिन ब्रश करा, कितने टाइम तक ब्रश करा, आपके ब्रश का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंसिस्टेंसी कैसी रही, द डेटा इज रिकॉर्डेड सिमिलर टू हाउ योर ब्लड शुगर लेवल्स आर रिकॉर्डेड बाय वेरियस डिवाइसेस. सो टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली चेंजिंग इट, बट मेरा एम्फेसिस आज भी यही है, अगर आप बेसिक केयर भी ढंग से करते हैं, यू कैन स्टिल get over 95% of your problems. Technology will only help in advanced cases as well as in particular cases, depending on your situation. जैसे ब्लैक फंगस के केसेस हुए थे जी, उनके लिए आप ओरल हेल्थ को नॉर्मल नहीं कर सकते. उनके लिए एक स्पेसिफिक ओरल हेल्थ ही चाहिएगी, जिसमें उनको वाटर फ्लॉसर्स, इरिगेटर्स चाहिएंगे, सिमिलर टू ओरल कैंसर पेशेंट्स, बट दैट कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी माइनर पार्ट ऑफ आवर पब्लिक राइट नाउ. सो ये चीजों पे अपने को ध्यान जरूर देना चाहिए. So, जैसा कि I think I also as a doctor did not know a lot about it, but I also had some medical problems, so I now have a water flosser. And then obviously this खाना अटकने की प्रॉब्लम, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. The alignment of the teeth sometimes are not right. Okay, खाना अटक जाता है and we age, and then because of habits and maybe because of implants and things like that. So how can we come around to structural problems in teeth, जैसे, and as an adult, what is the way, how can we increase the longevity of the teeth, because there will be some people who will be starting this journey today, let's say after hearing this. Yes. So उन लोगों के लिए क्या, yes, definitely better brushing, fluoride जैसा आपने बोला, toothpaste, toothbrushes, timing of toothbrushes, hygiene, completely agreed, but there are some problems which are still are there. कई प्रॉब्लम डेवलप्ड होती हैं, कई प्रॉब्लम वी इनहेरिटेड. जैसे दांत आपके शुरू से टेढ़े मेढ़े हैं और यू हैव अ कंडीशन ऑफ डीप बाइट, मतलब आपके दांत एक ऑप्टिमम जगह जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे नहीं है जी. इसकी वजह से वहाँ पे खाना अटकता है. सो यू आर मोर प्रोन टू कैविटीज बिकॉज दांत की पोजिशनिंग प्रॉपर नहीं है. जैसे सपोज कीजिए अभी ये मग टेबल के बीच में है तो स्टेबल है, अगर मैं उसको टेबल के कोने पे लगा दूंगा तो ये है वहां पे बट स्टेबल नहीं है. तो पोजिशनिंग आपके दांत की क्या रही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू address it in a proper way so that we can get over our problems easily. Now सबसे पहले मैं उन लोगों से ये I'll request them जो अपनी डेंटल जर्नी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं एक बेटर हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजिट योर डेंटिस्ट. वो डेंटिस्ट आपके लिए कस्टमाइज प्लान बना सकता है, वो आपकी कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता है. मोस्ट कॉमनली जो आपके अंदर अभी प्रॉब्लम होती है एडल्ट में, आपको एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, अनफॉर्चुनेटली गॉड ने डेंटल टिश्यू को रीजनरेट करने का पोटेंशियल दिया ही नहीं है. आपके हाथ में कट लग जाएगा, आपका हाथ की हड्डी भी टूट जाएगी, तो भी वो 3 महीने 6 महीने में सही होके ओरिजिनल जैसी बन जाएगी. बट अगर आपके दांत में कैविटी हो गई है तो हम उसको अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियली ही फिल कर सकते हैं.
हम उसको रीजनरेट करके ओरिजिनल जैसा नहीं बना सकते. सो व्हाट वी हैव टू स्टॉप इट इज बिकमिंग दैट कैविटी. तो वो कैविटी नहीं बने, इसके लिए अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए. वो पोटेंशियल सोर्सेज निकालेगा जो आप में इंक्रीज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी को कैविटीज की, जैसे कि दांत को टेढ़ा बेढ़ा होना या दांत ऐसे होना कि आपको क्लीन नहीं कर पा रहे. उसके लिए प्रेजेंटली नाउ डेज वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन नोन एज अलाइनर्स, जिसमें इवन एडल्ट्स कैन गेट द टीथ प्लेस्ड इन अ प्रॉपर पोजिशनिंग सो दैट उससे आगे उनके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या चांसेस कम हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम के. Okay. So when you talk about aligners, obviously कोई भी हम नया ट्रीटमेंट की बात करते हैं, there are some concerns, how new it is, how safe it is, how effective it is, how long will it take, will it work for me, what is their safety record, what is their effect on the teeth, how effective are they? If you can just tell us about a little bit more about that. Yes, definitely. I'll just take a brief moment to explain you what are aligners basically. जी. Aligners एक तरह से ट्रेडिशनल ब्रेसेस जो कि अपन सबने देखे हैं, नॉर्मली बचपन में कई लोगों के लगे भी होंगे, उसका एक ऑल्टरनेटिव है. आई विल गो अहेड एंड से इट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू ब्रेसेस. द पॉइंट इज कि ब्रेसेस के साथ में कुछ इनहेरेंट इश्यूज थे. स्पेसिफिकली वन ऑफ द मेजर वन बीइंग कि एडल्ट लोग नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल, उनके कॉस्मेटिक्स उनको वो फ्रीडम नहीं देते थे कि वो लोग अब उसको सही करा सके. So that freedom has come up with the advent of aligners. Now aligners are basically transparent sheets which basically give a kind of a mold to the teeth. So they move your teeth in a gradual way, in a sustained way to the right positioning. So they help your teeth from being positioning from a poor area to a good or an optimum area in the most cosmetic and the comfortable way possible right now. जी. जैसा कि आपने हाईलाइट करा, बिल्कुल ये सेम इश्यूज हमारे साथ में भी थे, क्योंकि व्हेन अलाइनर स्टार्टेड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हमारे करिकुलम का पार्ट वो नहीं थे. तो एनी न्यू टेक्नोलॉजी दैट कम्स टू यू व्हिच विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ योर बेसिक करिकुलम, सो आपके थोड़े उसके अंदर एप्रीहेंशंस होते हैं. हमारे भी एप्रीहेंशंस थे उसके लिए. बट as with any new technology that we, at least I personally as a dentist, incorporate into my practice, the thing is that we look into the safety record for it, whether it is working or not. So you will find that aligners have been popularly incorporated into clinical practice since the year 2007. Okay. It has already been a good number of years, around 15 plus years since aligners have been into practice. Initially they were open only for a limited number of cases कि आप ये ही सही कर सकते हैं. अब ऑलमोस्ट हम लोग 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स अलाइनर से सही कर सकते हैं. They have maintained a good track record of more than 98% efficiency in most of the cases where the compliances of the patients have been met. So मैं ये कहूँगा आज की तारीख में aligner is a very viable option for any adult who is preparing to go for a good journey of oral health care. Okay. So thank you, Dr. Basant. I think it was for me as a doctor also, there was a lot of learning. Definitely, I think as a parent, there is a learning. As an adult, there is a learning. As a member of the society and as a doctor myself, there is learning. And I think what he said in the starting, ki your mouth is a mirror to your health. So I would request all of you, please, whether it's your children or whether it's you or whether it's your parents, do definitely take care of the teeth. Kindly do have dental checkups. Do it from time to time. Improve the brushing. Ask, research. But definitely, I think it is a very important part of our general health. I would really like to thank you. It was a very, very kind of a nice talk. I think so. Learned a lot. And I think we gave a lot of information. Thank you very much. Thank you, Dr. Sailesh. It was nice to be here on this platform. And it is a great opportunity for me to be able to spread more oral awareness via your platform. Thanks a lot for having me here. Thank you. Thank you.